کل ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح ایک سردار جی جو بزنس مین تھے انہوں نے اپنے بچے کو آ کے بولا، جو اکیڈمی میں انڈر ٹریننگ تھا، کہ بیٹا دیکھو میں نے مٹھائی بانٹی تھی جب تم سلیکٹ ہوئے تھے، تاکہ سب پورے بازار کو پتہ لگ گیا تھا کہ میرا بیٹا افسر بننے جا رہا ہے۔ اب تم نے آنا ہے تو افسر بن کے آنا، نہیں تو گھر واپس آنے کی ضرورت نہیں۔ میں صرف آپ کو اس لیے یہ بتایا تھا کہ بچے کو اگر خراب کرتے ہیں یا بچے کی طرف اس کو اتنا پلیور کرتے ہیں یا اتنی اس کی بات مانتے ہیں اور وہ الٹے راستے چل پڑتا ہے تو وہ صرف ماں باپ کا ہی قصور مانا جاتا ہے۔ ہمارے وقت میں ایک کہاوت ہوتی تھی کہ اسپیئر دا راڈ اینڈ اسپوائل دا چائلڈ۔ آج کل آپ بچے کو ہاتھ نہیں لگاتے، آپ کے ٹیچرز جو ہیں وہ بچے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اگر وہ ہاتھ لگاتے ہیں تو ماں باپ پہنچ جاتے ہیں کہ بھائی تم کیوں ایسا کر رہے ہو۔ دوسرا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا پٹی پریڈ کا۔ پٹی پریڈ کیوں ضروری ہوتی تھی؟ کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ صرف ٹریننگ کے دوران میں نہیں، تقریباً میں نے اپنی سروس میں بھی دیکھا کہ ہم ایک ڈریس استعمال کر رہے ہیں، اس کو بدلی کر کے دوسری ڈریس فوراً کرنی پڑتی تھی، کیونکہ کوئی اچانک کوئی سینئر افسر وزٹ پہ آ جاتا تھا، اس کو بدلی کر کے کسی اور ڈریس میں ہمیں جانا پڑتا تھا، کیونکہ ہم باہر جا رہے ہیں، فیلڈ ایریا میں جا رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں صرف ایک چھوٹی سی کہ کیڈٹ کے لیے یہ پٹی پریڈ کیوں ضرورت تھی۔ نہ بھی پنشمنٹ کے طور پہ ہو، ہم صبح پی ٹی کرنے کے لیے جاتے تھے۔ ہماری جنچریا کس طرح سے شروع ہوتی تھی؟ صبح ایک بگل بجتا تھا جس کو کہتے ہیں ریویلی، یہ آج بھی فوج کے ہر یونٹ پہ بجائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اٹھ جاؤ، صبح اٹھنے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو اس کی جو پہلے ٹیون انگلش ٹیون ہوا کرتی تھی وہ تھی چارلی چارلی ویک اپ مائی بوائے، تو اس سے یہ بجائی جاتی تھی۔ لیکن اگر آپ اپنی ہسٹری میں جائیں تو آپ دیکھیں گے مہابھارت کی لڑائی میں صبح لڑائی شروع کرتے وقت بھی بگل بجتا تھا، اور جب لڑائی ختم ہوتی تھی تب بھی بگل نہیں شنکھ بجایا جاتا تھا، اور شام کو جب لڑائی ختم ہوتی تھی تب بھی شنکھ بجایا جاتا تھا جب سن سیٹ ہوتی تھی۔ سن سیٹ کے وقت آج بھی فوج میں ریٹریٹ بجائی جاتی ہے۔ میں نے آپ کو پٹی پریڈ کا ذکر کیا۔ صبح ہم جو ہی ریویلی سے کھڑے ہو جاتے تھے تو جلدی جلدی برشنگ، واش روم جانا، ٹوائلٹ جانا، چائے پینا سویرے کی، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں کوکو ملتا تھا 2 ڈاگ بسکٹ سے ساتھ، بھاگتے ہوئے کمرے میں آنا، پی ٹی ڈریس پہننی اور پی ٹی فیلڈ میں بھاگتے ہوئے چلے جانا۔ ہمیں پی ٹی فیلڈ تک جانے کے لیے سائیکل ایشو ہوتے تھے، لیکن اگر ہم پنشمنٹ پہ ہیں تو ہم سائیکلوں کا استعمال نہیں کر سکتے، ہمیں بھاگتے ہوئے جانا پڑتا تھا، بھاگتے ہوئے آنا پڑتا تھا۔ واپس آتے ہی ہم پی ٹی ڈریس میں ڈائننگ روم میں نہیں جا سکتے تھے، ہمیں اپنی جو دوسری ڈریس ہے اس کو بدلی کرنا پڑتا تھا۔ بدلی کر کے ہم جاتے تھے بریکفاسٹ کھانے کے لیے۔ بریکفاسٹ آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اتنے کیڈٹ جب اکٹھے جا کر بریکفاسٹ کے لیے بیٹھ جاتے ہیں ٹیبل کے اوپر، تو جو سروس کرنے والے ہیں ان کو بھی سروس کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے تھے کہ جو ہمارے ہر تقریباً 6-7 افسروں کے اوپر ایک بیرا ہوتا تھا جو سروس کرتا تھا، تو وہ ہم بیرر کو بتا جاتے تھے کہ بھائی دیکھو آج ہمارے لیے آملیٹ بنانا، فرائیڈ ایگ بنوانا، یا جو بھی ہم کھانا چاہتے تھے، تو وہ تیار رکھتا تھا، اور جو ہی ہم پہنچتے تھے وہ سامنے رکھ دیتے تھے۔ بھاگتے ہوئے ہم واپس آتے تھے، آ کر اگر ہم نے ڈرل کے لیے جانا ہے تو ہم نے ڈرل کی ڈریس پہلے پہن لی ہوتی تھی اور ہم ڈرل اسکوائر پہنچ جاتے تھے، اور اگر ہم نے کلاس روم میں جانا ہے تو ہم بھاگتے ہوئے کلاس روم میں جاتے تھے۔ تو اس لیے یہ ڈریس چینج اور ٹائمنگز کی جو تھی کہ ہمیں ڈریس کے اوپر زیادہ ٹائم نہ لگائیں،
हम उतना ही टाइम लगाएं और उसमें भी हम परफेक्टली ड्रेस्ड हों। ये नहीं कि हम लौजी, जिसे हम आजकल कहते हैं कि लौजी ड्रेस पहन के अनप्रेस्ड, कॉलर किसी तरफ जा रहा है, पेटी ठीक नहीं है, ब्रासो हुई नहीं है जो ब्रास के एरिया हिस्से हैं, बूट जो हैं वो शाइन नहीं कर रहे। हम ये हमारे इंस्ट्रक्टर देखते थे कि हमारे जो बूट की टो है उसमें हमारी शक्ल नज़र आनी चाहिए। तो इसलिए ये जितनी चीज़ें थी ये ज़रूरी थी। मैंने आपको बताया हमारे जो ड्रिल जो एजुटेंट थे कैप्टन विग, वो जब अपने साइकिल के ऊपर आते थे तो साइकिल पर बैठ के नहीं आते थे, बल्कि साइकिल को पकड़ के उसके साथ चलते हुए आते थे, ताकि उनकी ड्रेस में, उनकी पैंट में कोई सिलवट ना पड़े। अगर एजुटेंट जो हमें आके ड्रिल स्क्वायर पर चेक करता है उसका ये हाल है, तो आप ये मान सकते हैं कि वो अपने कैडेट्स से क्या रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट करता ही होगा या एक्सपेक्ट करता होगा। हमारे सूबेदार ज्ञानेश्वर बोरा बहुत, वो किस वक्त ड्रिल की मूवमेंट में घूम जाते थे मुझे पता ही नहीं चलता था, या हमें पता नहीं चलता था। इतनी उनकी फास्ट मूवमेंट होती थी, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, मार्च। तो हमें हॉल्ट, इतना मतलब बढ़िया, तो हमें उनको कॉपी करना होता था, वो हमें सिखाते थे। लेकिन उनकी हमारे लिए दिल में तो उनके लिए बहुत इज्जत होती थी, लेकिन कितनी इज्जत वो हमारी करते थे जब हम अफसर बन जाते थे। बहुत साल बाद मैं पीटी कोर्स कर रहा था पूना में, मुझे पता चला कि ज्ञानेश्वर बोरा जो मेरे स्क्वाड्रन के ड्रिल सूबेदार होते थे वो एनडीए में सूबेदार मेजर हैं, एनडीए खड़कवासला में था। मैंने टेलीफोन किया कि बोरा साहब मैं आपसे मिलने आना चाहता हूँ। कहने लगे साहब शाम को आ जाइए, जेसीओ मेस में आ जाइएगा। मैं एक सेकंड लेफ्टिनेंट था, 6 महीने मेरी नौकरी थी। मैं साइकिल के ऊपर तकरीबन 5 किलोमीटर साइकिल चला के बोरा साहब के मेस में पहुंचा। बोरा साहब ने जितने भी जेसीओ मेस में थे सबको लाइन अप किया हुआ था और मुझे सबसे इंट्रोड्यूस करवाया जैसे मैं एक बहुत बड़ा इंस्पेक्टिंग अफसर हूँ। एक सेकंड लेफ्टिनेंट जिनको उन्होंने खुद सिखाया था, उन्होंने खुद पढ़ाया था, उन्होंने खुद ड्रिल करना सिखाया था और मुझे अफसर बनने मदद की थी। आज वो मुझे इतनी इज्जत दे रहे थे। और जितने भी जेसीओस थे उन सब से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया गया। फिर मुझे मेस में ले गए और मुझे बताया कि साहब ये आशीर्वादम जो है आपके टाइम में हवलदार था, ये दशरथ आपके टाइम में हवलदार था, ये डीएन राव आपके टाइम में हवलदार था। तो सारे जितने जेसीओस थे उनको बार बार मुझे बता रहे थे। मुझे कितनी खुशी हुई ये तो मैं अंदाज़ा आपको बयान नहीं कर सकता, लेकिन उनको कितना फ़ख्र हुआ कि उनके सिखाए हुए जो वो लोग जिनको जूता भी पहनना, फ़ौज का जूता पहनना भी नहीं आता था, आज अफसर बनकर उनके सामने खड़े हैं। तो ये था रिश्ता जो सिर्फ उसी वक्त नहीं जब वो हमारे इंस्ट्रक्टर होते थे, बल्कि ये सारी उम्र कायम रहा और यही रिश्ता आज भी कायम है। हमारे जो उस्ताद होते थे, मैंने बताया कि भाई हमें कैबिन अलॉट किए जाते थे। एक एक कैबिन में उनको हम कैबिन कहते थे। कैबिन किस लिए कहते थे? जैसा मैंने कहा कि उनको कमरा रूम नहीं कहते थे, उनको कैबिन इसलिए कहते थे कि सब मिले जुले, कुछ नेवी की टर्म्स थी, कुछ आर्मी की टर्म्स थी, कुछ एयरफोर्स की टर्म्स थी, उन सब को इकट्ठा मिलाकर ये नाम दिए गए थे। तो एक कैबिन में मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम 5 कैडेट होते थे। हमारे हर एक के लिए एक एक कबर्ड था और एक एक ड्रेसिंग टेबल होता था। अभी कबर्ड को किस तरह से लेआउट किया जाता है, किस तरह से उस कबर्ड के अंदर सामान रखना जचाना है, कहाँ हमारी वर्दियाँ पड़ी हुई होंगी, कहाँ हमारी पीटी ड्रेस पड़ी हुई होगी,
PT شارٹ کو کس طرح سے فولڈ کیا جائے گا، ہماری جو بنیانیں ہیں وہ کس طرح کی فولڈ ہوں گی اور کیسے رکھی جائیں گی، اس کی ایک لے آؤٹ کا سٹینڈرڈ نمونہ ہر جو ہماری بیرک تھی، ہر بیرک کے اندر وہ اپنے ورانڈے میں لگا ہوتا تھا، وہ ہمیں اسی طرح سے رکھنی پڑتی تھی، اور ہر شنیوار کے دن اس کی انسپیکشن ہوتی تھی۔ بھگوان آپ کی رکشا کرے اگر آپ کا کیبن جو ہے یا آپ کا کبڈ جو ہے وہ ٹھیک لے آؤٹ میں نہیں ہے۔ آپ کا جو ڈریسنگ ٹیبل تھا اس کے اوپر آپ کا تیل، صابن، ٹوتھ برش یہ سب رکھے ہوتے تھے۔ جب ہم شروع میں اکیڈمی میں گئے 1952 میں، تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ برل کریم استعمال کریں گے، بالوں میں برل کریم لگائی جاتی تھی۔ پتہ نہیں آج کوئی برل کریم کو جانتا بھی ہے کہ نہیں، یا آج یہ مارکیٹ میں ہے بھی کہ نہیں۔ تو ہم برل کریم لگاتے تھے، اور ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش ساتھ رکھا رہتا تھا۔ ابھی ہوتا یہ تھا کہ اگر آپ کا ٹوتھ برش صاف نہیں ہے، یا برل کریم کی جو بوتل ہے اس کے ڈھکنے کے اوپر یا کسی جگہ پہ تھوڑی سی بھی کریم لگی ہوئی ہے، تو آپ فوراً آپ کو ایکسٹرا ڈرل یا ایکسٹرا پنشمنٹ مل جاتی تھی۔ تو کیا ہوتا تھا کہ برل کریم کی نئی باٹل جو ہے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر رہتی تھی، اسی طرح نیا برش جو ہے باہر نکالا ہوا، ایک بار اس کو پانی سے نکالا ہوا وہ ٹیبل پر رکھا ہوتا تھا۔ نیا نئے سوپ کیس کے اندر، جس کے اندر صابن کا، سوپ کیس کے اندر صابن کا کوئی نشان نہ ہو، وہ رکھا جاتا تھا تاکہ وہ صرف انسپیکشن کے لیے رہے، اور باقی جو روز استعمال کے تھے وہ نیچے کسی کبڈ میں یا کسی ڈرار میں چھپا دیے جاتے تھے۔ اس کے لیے بھی ہمیں دھیان رکھنا پڑتا تھا، کیونکہ جو انسپیکٹنگ افسر ہوتے تھے ہمارے، وہ بھی اسی راستے سے گزرے ہوئے تھے، تو وہ کسی وقت وہ ڈرار کھول لیتے تھے تو اس میں بھی ہم پکڑے جاتے تھے۔ تو یا تو پھر اس کو باہر رکھ دیا جاتا تھا برانڈے کے پچھلی کسی طرف، یا کہیں دور چھپا دیا جاتا تھا۔ اس میں جو میں ایک چیز ابھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمیں ہر 5 کیڈٹس کے اوپر ایک روم بیرر دیا جاتا تھا جو ہماری مدد کرتا تھا۔ شروع میں ہم اپنے جوتے خود چمکاتے تھے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ جوتے کس طرح سے چمکانے ہیں، لیکن اس کے بعد کچھ دیر کے بعد، مہینے 2 مہینے کے بعد روم بیرر ہماری مدد کرتا تھا، وہ ہمارے جوتے چمکا دیتے تھے، وہ ہماری ڈریس لگا دیتے تھے۔ جب ہم بھاگ کے PT سے آتے تھے تو وہ ہماری جو ڈرل کی ڈریس ہے یا کلاس روم جانے کی ڈریس ہے وہ تیار لگا کے رکھی ہوتی تھی تاکہ ہم آتے ہی جلدی جلدی پہنیں اور نکل جائیں۔ تو ان روم بیرر کو تاکہ وہ کام ہمارا اچھا کریں، بڑھیا رکھیں، اور کئی بار روم بیرر کو ہم اتنا اچھا ٹرین بھی کر دیتے تھے کہ وہ ہمارے کبڈ بھی لے آؤٹ کر کے تیار رکھتے تھے تاکہ ہمیں تھوڑی بہت ہی اس میں ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے، باقی سب تقریباً تیار ہو، تو وہ یہ بھی کر دیتے تھے۔ اور کئی بار سرپرائز انسپیکشن ہوتی تھی، تو یہ نہیں کہ آپ کا جو کبڈ ہے یا آپ کا ڈریسنگ ٹیبل جو ہے وہ خراب حالت میں ہو، آپ کی وہ جتنا بھی کمرہ ہے وہ ہر وقت انسپیکشن کے لیے تیار ہونا چاہیے، تو وہ اسی طرح سے رکھا جاتا تھا۔ وہ سارا جتنا تھا ڈسٹنگ وغیرہ سب کیا ہوا ہر وقت تیار رہتا تھا۔ رات کے وقت آپ کو بیڈ کے اوپر مچھردانی لگانی ضروری تھی، آپ مچھردانی کے اندر سوتے تھے۔ شام کے وقت جو پروگرام ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ ڈنر سے پہلے اور شام کی گیمز کے بعد آپ آ کر نہا کر یا منہ دھو کر تقریباً 7 بجے اپنے کمرے میں بیٹھ جاتے تھے۔ 7 سے 8 تک اسٹڈی پیریڈ ہوتا تھا، آپ کو اس وقت پڑھنا ہی پڑھنا تھا۔ آپ اپنی کتاب کھول کے چاہے پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن وہ کتاب کھول کے آپ کو وہ گھنٹہ بھر بیٹھنا ہوتا تھا۔ اس کے بعد جو ہی وسل بجتی تھی آپ فوراً اسکواڈ بنا کر جا کر سیدھے
डिनर के लिए चले जाते थे और डिनर के बाद आप फिर कमरे में आकर बैठ जाते थे, अपना काम करते थे या अगले दिन की तैयारी करते थे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि डिनर क्या होता था। आपको जो हफ्ते में 4 दिन डिनर नाइट होती थी, एब्सोल्युटली ब्रिटिश इंग्लिश सिस्टम। अभी डिनर नाइट क्या होती थी? डिनर नाइट होती थी जो आप गए मेस के अंदर मेस ड्रेस में और जाकर जो भी आपकी अलॉटेड कुर्सी सी उसके पीछे आप खड़े हो जाते थे। सब कैडेट अपने अपने कुर्सी के पीछे खड़े हो जाते थे। उसके बाद जो सीनियर अफसर उस दिन जो डिनर नाइट अटेंड कर रहा होता था, वो टॉप टेबल जो कि डाइस एक हर मेस के अंदर होता था, उसके ऊपर एक डाइस बना था, डाइस पे एक टॉप टेबल होता था जिसमें सीनियर अपॉइंटमेंट्स और उस दिन का जो ड्यूटी अफसर है वो बैठा था होता था। वो जब ड्यूटी अफसर अंदर आता था तो उससे पहले सब जितने भी कैडेट्स थे और कैडेट अपॉइंटमेंट्स थी वो सब अंदर आ जाती थी। ड्यूटी अफसर साहब आते थे, जो ही वो अंदर आते आके अपनी कुर्सी के पीछे खड़े होते, वो अपनी कुर्सी खींचकर जो ही वो खींचते उसकी आवाज़ होती तो सब कैडेट अपनी कुर्सी खींचकर बैठ सकते थे। हुक्म ये होता था कि आप अपने सिर्फ, और ये टेबल मैनर्स में शामिल था कि आप अपने सिर्फ दाएं और बाएं जो बैठा हुआ है उससे बात कर सकते हैं। जो आपके अपोजिट टेबल पर बैठा हो, जो आपके अपोजिट बैठा हुआ है टेबल के अक्रॉस, उससे आप बात नहीं कर सकते। आप ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते, उतनी ही लहजे में बात कर सकते हैं ताकि आपके दाहिने और बाएं वाला सुन सके। इसका मतलब ये था कि बाकी लोग जो आपस में बात कर रहे हैं उनको आपस में बात करने की डिस्टर्बेंस ना हो। इसी तरह खाने की जो होता था, आपके सामने जो सबसे पहला आता था वो होता थी सूप। सूप की गहरी प्लेट होती थी, उसके लिए सूप स्पून होता था। सूप स्पून आम तौर पर जो प्लेट है उसके सामने जहां आप बैठे हैं आपके अपोजिट प्लेट के सामने रखा होता था। ये भी एक सूप स्पून, एक स्पेशल स्पून होता था, तो आप उससे उठाते थे, उससे सूप पीते थे। बाकी जो जितने भी स्पून्स हैं वो इस लिहाज से लगाए जाते थे कि जो सबसे आपने नेक्स्ट स्पून या फोर्क या नाइफ इस्तेमाल करना है तो वो बाहर की तरफ होते थे, और ज्यों-ज्यों वो इस्तेमाल होते जाते थे वो उठा लिए जाते थे और वो वेटर उठा के ले जाते थे प्लेट के साथ। उसके बाद अगले स्पून की बारी आती थी। ये टेबल लेआउट का तरीका होता था। आपके बाएं हाथ की तरफ क्वार्टर प्लेट रखी जाती थी। डिनर नाइट में सिर्फ इंग्लिश फूड सर्व किया जाता था, इंडियन फूड सर्व नहीं की जाती थी। इंग्लिश फूड में क्या होता था? कटलेट, स्टू, फ्राइड, बॉयल्ड, ऐसी चीज़ें होती थी। और लेफ्ट हैंड साइड में जो बन होते थे या ब्रेड के पीसेस होते थे, आप उसको राइट हैंड से ब्रेड को नहीं उठा सकते थे। ब्रेड आपके बाईं तरफ होती थी, वो आपने बाएं हाथ से ही थोड़ी सी तोड़नी थी और थोड़ी थोड़ी करके मुंह में डालनी है। आप ये नहीं कर सकते कि आधी ब्रेड, वो जो ब्रेड का पीस है उसको तोड़ के मुंह में डाल लें। छोटा छोटा, बड़ी यानी ध्यान के साथ आपको ये करना पड़ता था। कोई खाना खाते वक्त प्लेट के अंदर स्पून की आवाज़ ज़ोर से नहीं आ सकती। स्पून उसी तरह इस्तेमाल करना है ताकि उसकी आवाज़ कम से कम आए। इतनी रिस्ट्रिक्शन के बाद शुरू में हम लोग भूखे रह जाते थे, खाना खाया ही नहीं जाता था। जो ही सबसे टॉप टेबल पर जो ड्यूटी अफसर होता था या वीआईपी होता था किसी दिन, तो उसने अपने सूप ख़त्म करके
अपना स्पून सीधा कर दिया है तो बाकी सब जितने भी कैडेट्स हैं उनको सब वो अपना सारा अपना स्पून सीधा कर देते थे। आपके अपने टेबल के ऊपर जो टेबल के हेड पे बैठा हुआ होता था वो सबसे उस टेबल का सीनियर कैडेट होता था, या कोई सीनियर अपॉइंटमेंट या कोई सीनियर कैडेट। तो जब टॉप टेबल पे स्पून सीधा होता था तो उसी वक्त वो अपना स्पून सीधा कर देता था अपनी प्लेट में, और उसी वक्त आप अपना स्पून जो है वो सीधा कर सकते थे, उससे पहले नहीं। जो ही वो स्पून सीधे होते थे तो जो वेटर्स थे वो आकर प्लेटों को उठाना शुरू कर देते थे। सर्विस हेड से शुरू करके लेफ़्ट की तरफ की जाती थी और वेटर्स को पूरा इतनी सिखलाई होती थी कि वो कभी गलती नहीं करते थे। तो ये था डिनर नाइट। जो ही डिनर नाइट ख़त्म होती थी, जो वीआईपी या ड्यूटी अफसर होता था, जो ही वो खड़े होते थे सब उठ के खड़े हो जाते थे और अपनी सीट को आगे करके सीट के पीछे आ जाते थे। जो ही ड्यूटी अफसर निकलता था वो कहता था गुड नाइट, आप ज़ोर से गुड नाइट बोलते थे, वो निकल जाता था। उसके बाद सीनियर अपॉइंटमेंट निकलती थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सीनियर कैडेट निकलते थे और सबसे पीछे जो फर्स्ट टर्म वाले होते थे वो निकलते थे। तो ये था डिनर नाइट का तरीका। टेबल मैनर्स जो थे वो इसलिए सिखाए जाते थे कि जब आप किसी ग्रुप में या किसी मेस के अंदर एंटी रूम में बात करते हैं तो आपको किस तरह से बात करनी चाहिए। आप ऊंची आवाज़ में नहीं बोल सकते क्योंकि एंटी रूम में बहुत से लोग खड़े हैं, सब आपस में बात कर रहे हैं, और बात इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि एक जगह जो 3-4 अफसर बात कर रहे हैं उनकी ऊंची आवाज़ दूसरे किसी 3-4 अफसर जो बात कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब करें। तो ये सब चीज़ें जो थी हमें सिखाई जाती थी, जो हम आम तौर पर घरों में नहीं सीखते। इसके बाद आगे होता था कि हम इसके जो आउटडोर ट्रेनिंग होती थी। आउटडोर ट्रेनिंग क्या होती थी? आउटडोर ट्रेनिंग होती थी जिसमें हमें टैक्टिक्स सिखाए जाते थे कि जब हम चल रहे हैं तो हमें किस तरह से चलना है। जब फील्ड एरिया में हम चलते हैं, लड़ाई के मैदान में हम चलते हैं, या जो आम आज फील्ड एरिया वहाँ चलते हैं, तो हमें किस तरह से चलना है, कौन सा हमारा ड्रेस होगा, फील्ड ड्रेस, किस ड्रेस में हम मार्च करेंगे, कौन सा ड्रेस है जो हमें ऑब्स्टिकल कोर्स के लिए ज़रूरी है, किस तरह से हमने ऑब्स्टिकल क्रॉस करने हैं। ये ऑब्स्टिकल कोर्स ट्रेनिंग भी पहले हमें ऑब्स्टिकल कोर्स जो मैदान में बना होता था, जो अपने ट्रेनिंग एरिया में बना होता था वहाँ था, और फिर वही कोर्स हमने ऑब्स्टिकल कैसे क्रॉस करने हैं जब हम आउटडोर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो हम अभी उसी सिखलाई को इस्तेमाल करते थे। आउटडोर ट्रेनिंग में हम जाकर अपने लिए अपने टेंट लगाते थे। टेंट को किस तरह से लगाया जाता है ये हमें सिखलाया जाता था। टेंट को किस तरह से अंदर उसकी लेआउट क्या है ये हमें बताया जाता था। टेंट के चारों तरफ एक एंटी स्नेक ट्रेंच खोदा जाता था, जो सीधा बिल्कुल खुदाई होती थी, तकरीबन 1 फुट गहरा, 1 फुट चौड़ा और फिर 1 फुट वो सामने की तरफ से ऊंचा होता था, ताकि जो वहाँ अजगर या स्नेक अगर फील्ड एरिया में घूम रहे हैं जहाँ आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वो आपके टेंट के अंदर ना घुस पाएँ। टेंट के अंदर भी लेआउट क्या होती है, जब आप सुबह उठ के आप बाहर ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं तो आपका जो पीछे सामान है वो ग्राउंड शीट के ऊपर किस तरह से लेआउट होगा उसका भी नमूना होता था, और वो उसी तरह से हमें नमूने के तौर पर करना पड़ता था। एक बार जो हम पहला जो कैंप था वो उसका नाम था कैंप ग्रीन हॉर्न।
ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है, ग्रीन हॉर्न होते हैं जो शुरू में जो हिरन होता है उसके जो सींग निकलते हैं तो वो हरे रंग के होते हैं, जो जब वो छोटे छोटे होते हैं। तो इसीलिए हम भी नए खिलाड़ी आए थे एकेडमी में, तो हमारे लिए भी वो जो पहला कैंप था उसको कैंप ग्रीन हॉर्न कहा जाता था। उसमें रूट मार्चेस थी, ट्रेनिंग थी, टैक्टिकल ट्रेनिंग थी, और सब उसमें ये शामिल होता था। ग्रीन हॉर्न में मुझे याद है हम रात के वक्त वहाँ पर भी जो मॉस्किटो नेट है उसका लगाना ज़रूरी होता था। एक दिन हम सुबह उठे, हमारे तीनों जो डिव के अफसर थे, मेजर कमर चांद सिंह, कैप्टन पृथ्वीराज और लेफ्टिनेंट राजखोआ, एक वो वहाँ बंगलो था, डाक बंगलो, जिसके वरांडे में इन तीनों ने अपने बिस्तर लगाए हुए थे, और हम बाहर उठ के पीछे नाला था उसकी तरफ जा रहे थे ब्रशिंग करने के लिए और मुंह हाथ धोने के लिए। तो ये उसी वक्त रवैली शुरू हुई और ये तीनों वहाँ गा रहे थे, चार्ली चार्ली टिकल माई बॉल्स, चार्ली चार्ली टिकल माई बॉल्स। तो हम हंस भी नहीं सकते थे, और ये तीनों वहाँ लेटे हुए उठ के अपने बैठे हुए अपने बिस्तरों के अंदर ये लगे हुए थे, और हम चुपके से साथ से निकल गए। ये भी आपस में हंसी मजाक करते थे, लेकिन हमारे सामने हमारे साथ ये हंसी मजाक कर सकते थे, लेकिन हम इनको जवाब नहीं दे सकते थे। इसके अलावा हमें फायरिंग सिखाई जाती थी। फायरिंग शुरू में हम छोटी रेंज पे करते थे, जिसको हम शॉर्ट रेंज कहते हैं। उसके ऊपर हमें शुरू में फायरिंग के लिए ले जाया जाता था। पहले हमें पूरी फायरिंग की ड्रिल कराई जाती थी। जो फायरिंग के जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे वो अलग होते थे, जो पीटी इंस्ट्रक्टर थे वो अलग थे, ड्रिल इंस्ट्रक्टर अलग थे, और जो डब्ल्यूटी इंस्ट्रक्टर थे, जिनको हम वेपन ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर कहते थे, वो अलग थे। वेपन ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर जो थे वो पूरा शुरू से लेके के पहले वेपन को किस तरह से पकड़ना है, किस तरह से उठाना है, किस तरह से कैरी करना है, किस तरह से उसकी सफाई करनी है, वो सब हमें सिखलाया जाता था। जो हमारे वक़्त में राइफ़ल्स थी उनको 303 राइफ़ल्स होती थी, .303, यानी ये उनका कैलिबर होता था। तो वो राइफ़ल हम इस्तेमाल करते थे। उनका जो बाहर का स्टॉक था वो लकड़ी का होता था। उस लकड़ी के ऊपर हफ्ते में एक बार जब हमारा वो राइफ़ल या वेपन मेंटेनेंस टाइम होता था, तो उनके ऊपर अलसी का तेल लगाया जाता था, ताकि वो नरम रहें, ठीक रहें और वो फट ना जाए। तो उनसे हमारी शुरू में वेपन ट्रेनिंग, पहले वेपन ट्रेनिंग सिर्फ ड्राई रन कराई जाती थी। किस तरह से हमने राइफ़ल के चैम्बर को खोलना है, किस तरह से उसको बंद करना है, इसी में काफ़ी टाइम लगा दिया जाता था, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है। लड़ाई के मैदान के अंदर वो आपका हाथ इतना तेज़ चलना चाहिए कि आप उसको फ़ौरन कॉक कर सकें, फ़ौरन दूसरा राउंड जो है वो लोड कर सकें और फायर कर सकें। तो इसकी बड़ी महारत कराई जाती थी, बड़ी प्रैक्टिस कराई जाती थी। आजकल जो राइफ़ल आती हैं वो ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक हैं। उनमें ये होता है कि जो ही पहली बार आपको उन्हें कॉक करना पड़ता है, लेकिन जो ही पहला राउंड फायर होता है तो वो अपने आप कॉक हो जाती हैं, उनको दोबारा कॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आजकल ये सिस्टम थोड़ा और आसान हो गया है, लेकिन वो आजकल के वेपन्स हैं। हमने जिन पर सीखा वो 303 राइफ़ल्स थी, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की राइफ़ल्स थी। सबसे पहले हमारी ट्रेनिंग डीपी राइफ़ल पे कराई जाती थी, जो डमी राइफ़ल्स थी।
यानी आप उनसे फायर नहीं कर सकते थे, उनके अंदर फायरिंग पिन नहीं होता था। हमें उसी से लोड अनलोड की प्रैक्टिस कराई जाती थी। उसके बाद हम फायरिंग राइफल्स के ऊपर आते थे, जो हमें बाद में दी जाती थी और हम रेंज पे प्रैक्टिस करते थे। जैसा मैंने कहा, पहले जो प्रैक्टिस करते थे हम, वो शॉर्ट रेंज पे करते थे। उससे पहले हमें लॉन्ग रेंज पे प्रैक्टिस कराई जाती थी। हमारे वक़्त हमें 300 गज़ और लंबी से लंबी 500 गज़ तक फायरिंग कराई जाती थी। 300 गज़ का जो टारगेट होता था वो 4x4 यानी 4 फुट बाई 4 फुट का टारगेट होता था, और 500 गज़ का जो टारगेट होता था वो 6x6 यानी 6 फुट बाई 6 फुट होता था। उसके अंदर मार्किंग की होती थी, बुल, इनर, सेंटर, आउटर, ये तीनों उसके ऊपर रिंग लगे हुए होते थे जो उसके ऊपर होते थे। इस पे हमें फायरिंग प्रैक्टिस दी जाती थी, और उस प्रैक्टिस के दौरान हमारी स्कोरिंग होती थी। यानी आपको, अगर आपने बुल में जो सेंटर होता था उसमें आपका निशाना गया है तो कितने मार्क्स मिलते थे, जो इनर में गया है तो कितने मार्क्स मिलते हैं, जो सेंटर में उसमें गया है कितने मार्क्स, जो आउटर में गया है उसके। आपने देखा होगा, अगर आप ओलंपिक्स देखते हैं तो आपने देखा होगा, जब एरो शूटिंग की जाती है तो उसकी भी मार्किंग इसी तरह से होती है, और जब वो पिस्टल या राइफ़ल शूटिंग की जाती है, जो स्पोर्ट्स वेपन है उनकी शूटिंग है, तो उनकी भी मार्किंग इसी तरह से होती है। हमारे वक्त जो रेंजेस थी, हम जाकर खुद टारगेट लगाते थे और ख़ुद आज उनको उठा के लाते थे देखने के लिए, या वहाँ जाकर इंस्ट्रक्टर उन सब टारगेट्स को देखता था। आजकल वो बहुत अच्छी बन गई हैं। आजकल टारगेट जो है वो आपके पास वापस नज़दीक आ जाता है, आप उसको खींचते हैं, वो नज़दीक आ जाता है, टारगेट बदली कर दिया जाता है, नया टारगेट लगाया जाता है और नए आदमी उसके ऊपर फायर करते हैं। तो ये था फायरिंग। अगला था ग्रेनेड थ्रोइंग। अभी ग्रेनेड थ्रोइंग क्या क्या, पहले हमें ग्रेनेड जो थ्रो करवाए जाते थे वो थे स्टन ग्रेनेड, जो सिर्फ आवाज़ करते थे। वो ग्रेनेड हम ट्रेंच में खड़े होकर वो ग्रेनेड फेंकते थे। हमारे सामने उस्ताद खड़ा होता था, हम उसके अपोजिट खड़े होते थे। वो ये यकीन करता था कि हमारा हाथ किस तरह से, ग्रेनेड थ्रोइंग के लिए भी एक एक्चुअल मूवमेंट करनी पड़ती है कि हाथ कहाँ तक पीछे जाएगा, कैसे उसको ग्रेनेड को फेंका जाएगा, और वो ग्रेनेड कम से कम कितनी दूरी तक जाना चाहिए। तो पहले वो छोटे ग्रेनेड थे जिनको स्टन ग्रेनेड कहते थे, जो सिर्फ आवाज़ करते थे, वो फेंकाए जाते थे। उनके ऊपर एक फ्यूज़ होता था। फ्यूज़ जो है उसको आग लगाने के बाद कितनी जल्दी वो फेंकना है उसकी महारत हमें दिलाई जाती थी, क्योंकि अगर वो हाथ में फट जाए तो, हालांकि वो स्टन ग्रेनेड होता था, हाथ में फट जाए तो भी वो आपका अंगूठा ले जाता था, और फ़ौज में अगर आपका अंगूठा चला गया है तो आप बेकार हो गए, आप आगे ना फ़ौज की नौकरी कर सकते हैं, आपको फ़ौज से निकाल दिया जाएगा। दूसरा होता था HE-36 ग्रेनेड, जो आज भी इस्तेमाल हो रहा है। उस ग्रेनेड में फ्यूज़ डाला जाता था, और उसको जो ही आप, उसके ऊपर एक प्लंजर होता था जो एक लीवर था, जो ही आप उस लीवर को निकालते थे तो उसको फेंकने से पहले वो लीवर आपके हाथ में होता था। आप अपनी उंगलियों से उस लीवर को दबा के रखते थे। जो ही वो आप फेंकते थे, चूँकि आपने उसके अंदर जो सेफ्टी पिन है वो निकाल दिया होता था, तो सेफ्टी पिन निकालने के बाद वो लीवर तैयार था। जो ही आप उसको छोड़ते थे वो लीवर निकल जाता था, वो जाकर जो अंदर आपने फ्यूज़ लगाया हुआ होता था उसके ऊपर स्ट्राइक करता था, और अगले 10 सेकंड के अंदर वो फ्यूज़ जो है वो फट जाता था। उस 10 सेकंड के अंदर
जो ही आपने देखा, आपने क्या देखना है कि वो ग्रेनेड कहाँ गिरा है। जो ही आपने देखा वो कहाँ गिर गया है, आप ट्रेंच के अंदर सिर नीचा कर लेते थे। नीचा इसलिए कि अगर आपने वो नीचा सिर नहीं किया तो वो ग्रेनेड फटने के ऊपर अलग अलग इतने उसके हिस्से होते थे कि अगर उसका कोई भी हिस्सा जो है वो किसी तरफ को निकलते हुए आपको लग जाए तो वो आपको या तो ज़ख्मी कर सकता था, या सख्त घायल कर सकता था, या आपकी जान ले सकता था। तो और उस जो ग्रेनेड है उसका जो डेंजर एरिया है वो 100 मीटर 100 गज चारों तरफ था। और वो जो ग्रेनेड हम फेंकते थे वो कम से कम 30 गज दूर फेंका जाना चाहिए। काफ़ी भारी होता है, वो हैवी होता है, तो वो हम उसकी हमें प्रैक्टिस कराई जाती थी। ये था वेपन ट्रेनिंग जो हम करते थे। उसके बाद जब हम ये महारत हासिल कर लेते थे तो यूँ ही हम आगे बढ़ते थे। जो हमारे से मैंने कहा सीनियर होते थे, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, अब फोर्थ टर्म वाले थे, जो ही वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे होते थे तो उनकी जो आखिरी ड्रिल होती थी उसको कहते थे पासिंग आउट परेड। तो पासिंग आउट परेड शुरू होती थी। पासिंग आउट परेड क्या होती थी कि पूरी ड्रिल स्क्वायर के ऊपर जितने भी कोर्सेज हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, वो सब फॉलन किए जाते थे। उनके अलग अलग ग्रुप बनाए जाते थे, अलग अलग कंपनियों में होते थे, जैसे हमारे थे, या अलग अलग स्क्वाड्रन में वो फॉलन किए जाते थे। हमारा जैसे था, मैंने कहा इको स्क्वाड्रन, इजी स्क्वाड्रन था। इसी तरह एबल स्क्वाड्रन या ए स्क्वाड्रन अलग, बी स्क्वाड्रन अलग, सी स्क्वाड्रन अलग, डी स्क्वाड्रन अलग, ई स्क्वाड्रन अलग, एफ स्क्वाड्रन अलग अलग फॉलन होते थे। वो सब ड्रिल करते थे। उसमें प्रॉपर ड्रिल का सीक्वेंस होता है कि क्या किस तरह से ड्रिल करनी है, और ड्रिल जो है वो हथियार के साथ की जाती है। हमें हथियार से सिर्फ फायरिंग ही नहीं कराई जाती थी, बल्कि हथियार के साथ ड्रिल कैसे करनी है वो भी सिखाया जाता था। हथियार के साथ जब हम ड्रिल करते थे, उस ड्रिल के साथ कैसे सल्यूट करनी है, कैसे सावधान करना है, कैसे विश्राम करना है, कैसे उसको प्रेजेंट आर्म करना है, किस तरह से सल्यूट देनी है, ये सब हमें सिखाया जाता था। जब पासिंग आउट परेड होती थी तो उसका सीक्वेंस होता था। उसके लिए कम से कम भी तो महीना डेढ़ या इससे भी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती थी। और प्रैक्टिस इतनी सख्त होती थी कि जब तक जो वो हमारे उस्ताद थे उनकी तसल्ली नहीं हो जाती थी, और जब तक एडजुटेंट की तसल्ली नहीं हो जाती थी, तब तक आपको छुट्टी नहीं मिलती थी। जॉइंट सर्विसेज विंग में जब हम गए तो उस वक़्त एक ब्रिटिश सार्जेंट मेजर होते थे। हमारे वक़्त में जो ब्रिटिश सार्जेंट मेजर थे वो ग्रेनेडियर गार्ड से थे। उनका नाम था सार्जेंट मेजर एलिंग। उनकी बड़ी तीखी आवाज़ थी और बहुत ऊंची आवाज़ थी, और वो ड्रिल स्क्वायर के ऊपर सबसे सीनियर ड्रिल इंस्ट्रक्टर थे। उनके हाथ में एक होती थी पेस्टिक होती थी, जिसके ऊपर उन्होंने वो पूरे एक 30 इंच का, क्योंकि हमारा जो फ़ौज का मार्चिंग स्टेप है वो 30 इंच का होता है, तो 30 इंच का स्टेप हमारा किस तरह से होना चाहिए, उनके हाथ में एक पेस्टिक होती थी जिसके साथ वो चलते थे। वो पेस्टिक के दोनों जो सामने पेस्टिक होती थी, जैसे आपका एक वो प्रकार होती है ना, उस तरह से होती थी। उसके दोनों जो सामने के जो डंडे होते थे वो 30 इंच खुले होते थे, और वो उसके साथ चलते जाते थे। वो 30 इंच का हर पूरा स्टेप उनका एग्जैक्ट होता था, और ये यकीन किया जाता था कि हमारा भी हर स्टेप जो है वो 30 इंच का हो। हमें वो प्रैक्टिस कराई जाती थी,
और अच्छी खासी प्रैक्टिस होती थी, ताकि जिस दिन वो परेड हो, फाइनल परेड हो, उसमें कोई गलती ना हो या गलती की गुंजाइश ना हो। अभी उसमें होता क्या था, अगर कोई स्क्वाड्रन गलती कर रहा है या उसकी ड्रिल ठीक नहीं है, तो एक ही आर्डर होता था, हाई पोर्ट। हाई पोर्ट का मतलब होता था जो हथियार जो है आप दोनों हाथ करके ऐसे उठा लो, और डबल मार्च, और पूरे ड्रिल स्क्वायर के ऊपर आप भागना शुरू कर देते थे, और आप तब तक भागते रहते थे जब तक आपका पसीना पूरे ड्रेस के बाहर नहीं आना शुरू हो जाता था। तो उस सजा से बचने के लिए हर आदमी ये कोशिश करता था कि भाई ड्रिल ठीक हो और ड्रिल की बढ़िया कोऑर्डिनेशन हो। अभी जब हम ड्रिल कर रहे होते थे तो हमारे पीछे जो हमारे हवलदार इंस्ट्रक्टर थे, जैसे सार्जेंट मेजर एलिंग ड्रिल करवा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो हमारे जो हवलदार इंस्ट्रक्टर या जेसीओ इंस्ट्रक्टर थे वो पीछे खड़े रहते थे। वो जो ही सार्जेंट मेजर ने कहना अल्फा स्क्वाड्रन लास्ट रो या रियर रो, थर्ड मैन फ्रॉम द राइट, तो वो भाग के उस्ताद जो था वो आपके नज़दीक जो पीछे खड़े थे वो आ जाते थे, आपका नाम नंबर नोट करते थे। आपको उसी वक्त ये समझ लेना चाहिए कि 4-5 एक्स्ट्रा ड्रिल आपको करनी पड़ेंगी। कई बार ऐसा होता था कि उन्होंने, वो सार्जेंट मेजर ने कहा है इजी स्क्वाड्रन, थर्ड रो, लास्ट रो, मिडल पर्सन, तो मिडल अभी वो ढूंढ रहा है हवलदार के मिडल कहाँ पर आएगा या दरमियान कहाँ पर आएगा, तो वो आपके पास खड़ा हो जाता था। आपने गलती नहीं की, लेकिन आपने कहीं गलती से ये कह दिया कि उस्ताद मेरा नहीं वो दाहिने वाला है, तो वो कहता था उसने आपका नंबर ज़रूर नोट कर लें, वो बोलेगा टॉकिंग ऑन परेड, आपका नंबर नोट कर दिया कि आपने बात की है परेड करते करते। तो ये हमारी हालत होती थी। लेकिन अगर वो लोग, क्योंकि फाइनल जो परेड होती थी, जिस दिन रिव्यूइंग अफसर आते थे, आम तौर पर एक लेफ्टिनेंट जनरल आते थे, वो आकर रिव्यू करते थे परेड को, और जितने भी फाइनल टर्म के कैडेट्स होते थे उनके माता पिता आए हुए होते थे, वो सारे वहाँ, उनके लिए कुर्सियाँ लगाई जाती थी, वो सारी परेड को वो देखते थे। ये मतलब तकरीबन यहाँ तक अभी ये था। और जैसा मैंने कहा, जो परेड रिव्यूइंग अफसर होते थे वो आम तौर पर एक लेफ्टिनेंट जनरल होते थे, कमांडेंट से बहुत सीनियर होते थे, और आम तौर पर कोई ना कोई आर्मी कमांडर होते थे, वो होते थे हमारे रिव्यूइंग अफसर। ये थी जब हमारी फाइनल परेड होती थी। आपके टाइम रिव्यूइंग ऑफिसर कौन आया था? मैं, जब मेरी फाइनल परेड हुई थी, जब मैं 4th टर्म में पहुंचा था JSW में, तो हमारे वक़्त में उस वक़्त शाह ऑफ ईरान आए थे, उनके लिए परेड की जा रही थी और हम उस परेड में शामिल थे। उनके साथ क्वीन सुरैया भी आई थी। उस वक़्त क्वीन सुरैया जो थी वो उनकी क्वीन थी। थोड़े सालों के बाद उनका डाइवोर्स हो गया, क्योंकि क्वीन सुरैया का कोई बच्चा नहीं था, तो उन्होंने दूसरी शादी की। लेकिन उस वक़्त वो आए थे और सबकी आंखें फटी हुई थी कि क्वीन कहाँ खड़ी है। तो वो आए थे और उन्होंने परेड को देखा था, और उनके लिए स्पेशल परेड की गई थी जो हमारी रिव्यूइंग परेड थी। और आपके घर से कौन कौन आए थे? मेरे घर से जब मेरी फाइनल परेड हुई थी तब आए थे। जब JSW से हम फाइनल परेड होती थी तो आम तौर पर बहुत से कम पेरेंट्स आते थे। पेरेंट्स आते थे जब हमारी फाइनल परेड होती थी IMSA, या जिसको हम मिलिट्री विंग कहते थे, क्योंकि उस वक़्त हम कमीशन होते थे। इस वक़्त जो फाइनल परेड होती थी वो एक नॉर्मल परेड की तरह काउंट होती थी,
तो इसमें बहुत कम पेरेंट्स आते थे। जो नज़दीक देहरादून या उसके इर्द गिर्द रहने वाले थे वो आ जाते थे, ज़्यादा पेरेंट्स नहीं आते थे। ज़्यादा पेरेंट्स जो आते थे वो उस वक्त आते थे जब फाइनल परेड, जब हम कमीशन लेते थे उस वक्त आते थे। और कमीशन पर जो मेरे रिव्यूइंग अफसर आए थे उसके बारे में मैं आपको अगली बारी बताऊंगा। धन्यवाद।